Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in computer art, today's topic is computer safety and security. So let's start the chapter. Learning objectives. How to keep your computer physically fit. Protecting your computer from illegal access. How to back up your important files. Malware, antivirus, firewall. Computer safety refers to the protection of computer-based resources against unauthorized use or physical damage. You know that computers are expensive, so if you have a computer, you must take care of it. It is not difficult to keep your computer healthy and in good working condition. Maintaining a computer involves three things: keeping it physically clean, protecting it from malware, बैकिंग अप योर इम्पॉर्टेंट फाइल्स। तो बच्चों, जब हम कंप्यूटर सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन हमें सबसे ऊपर रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में आपके कुछ अनऑथराइज जो यूज़ हो सकते हैं या उसको फिजिकली डैमेज भी किया जा सकता है, तो आपको अपने कंप्यूटर को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपको पता ही है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और आपको अपने कंप्यूटर को उसकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ठीक है। अब ये डिफ़िकल्ट तो नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर को हेल्दी ना रख सको या उसे अच्छी वर्किंग कंडीशन में ना रख सको। मेंटेनिंग कंप्यूटर इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपको फिजिकली उसे क्लीन रखना होता है, ठीक है, उस पर डस्ट नहीं जमने देना। दूसरा, आपको उसको मालवेयर, जितने भी आपके वायरस होते हैं उससे आपको क्या रखना होता है, उसे प्रोटेक्ट करके रखना होता है। और सबसे थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको अपनी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उसका बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाउ टू कीप योर कंप्यूटर फिजिकली फिट। अब कैसे आप अपने कंप्यूटर को फिजिकली फिट रख सकते हैं ये हम देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन कंप्यूटर सेफ्टी इज़ टू कीप योर कंप्यूटर फिजिकली फिट। डस्ट कैन पोटेंशियली destroy the parts of your computer. By cleaning your computer regularly, you can maintain its performance and avoid expenses on repair. Cleaning the computer means cleaning different parts of the computer system, like cleaning the keyboard. Cleaning the keyboard is an important task for keeping your computer physically fit. Dust and dirt on the keyboard do not look nice and can prevent your keyboard from working properly. Particles such as dust, food, liquid, etc. can get stuck underneath the keys, which can prevent the keys from functioning properly. Use a soft cloth to clean the keys of the keyboard. Second, cleaning the mouse. Cleaning the mouse is the next step to keep your computer physically fit. There are two main types of mouses: optical and mechanical. An optical mouse is an advanced computer pointing device that uses a light emitting diode LED and an optical sensor. This type of mouse does not require any internal cleaning since there are no rotating parts. However, they can get sticky over time as dust collects near the light emitters. This can cause erratic cursor movement or prevent the mouse from working. You must clean the surface of the mouse and mouse pad regularly to prevent dust from accumulating on the mouse. Mechanical mouse uses a rubber ball that makes contact with wheels inside the unit when it is rolled on a pad or desktop. This type of mouse is especially susceptible to dust and particles that can accumulate inside the mouse, which can make it difficult to track or move properly. If the mouse pointer does not move smoothly, you will have to clean the rubber ball. तो बच्चों, यहाँ पे हम जानेंगे कैसे हम अपने कंप्यूटर को फिजिकली फिट रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है आपकी कंप्यूटर सेफ्टी में वो होता है आपके कंप्यूटर को फिजिकली फिट रखना। डस्ट जो होती है वो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए आपको रेगुलर बेसिस में अपने कंप्यूटर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को नीट एंड क्लीन रख सकते हो। सबसे पहले आता है आपका क्लीनिंग द कीबोर्ड, ठीक है। क्लीनिंग द कीबोर्ड जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट टास्क होता है ताकि आप अपने कंप्यूटर को फिजिकली फिट रख सको, ठीक है। आपको डस्ट और डर्ट जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए ताकि वो आपके कीबोर्ड पे ना जमे। आपको अपने कीबोर्ड को
रेगुलर बेसिस पे क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या आप सपोज़ अपने कंप्यूटर पे काम करते समय आप खाना खा रहे हो, कोई लिक्विड पी रहे हो, तो वो आपके कीबोर्ड पे गिर सकता है और वो आपके कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी को ख़राब कर सकता है, उसे डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप चाहते हो आपका कीबोर्ड अच्छे से फंक्शन करे, अच्छे से वर्क करे, तो आपको उसे डेली सॉफ्ट क्लॉथ से क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। सेकेंड, हम जान लेते हैं कि अपने माउस को कैसे हमें क्लीन करना चाहिए, ठीक है। अब माउस को भी क्लीन रखना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। इसमें आपके दो तरह के माउस होते हैं, एक होता है आपका ऑप्टिकल माउस और एक होता है आपका मैकेनिकल माउस, ठीक है। ऑप्टिकल माउस जो होता है वो आपका एडवांस कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो कि आपके एलईडी लाइट उसमें से क्या करती है, निकलती है, ठीक है। और उसमें एक ऑप्टिकल सेंसर होता है। इस टाइप का जो माउस होता है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं होती इंटरनल क्लीनिंग की, लेकिन फिर भी उसमें रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते, लेकिन एक स्टिकी, कभी कभी वो क्या हो जाता है, स्टिकी हो जाता है ओवर टाइम। उसमें क्या हो जाता है, डस्ट जो होती है वो उसकी लाइट के आसपास जमा हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको भी नीट एंड क्लीन कर सकते हो किसी ड्राई क्लॉथ से। मैकेनिकल माउस जो होता है वो उसमें आपकी रबड़ बॉल होती है, ठीक है। अब जो रबड़ बॉल होती है वो क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती है। जब वो रोटेट होती है तो उसमें चांसेस होते हैं आपके डस्ट पार्टिकल्स घुसने के, ठीक है। अब इसमें आपके डस्ट पार्टिकल जब घुस जाते हैं तो आपको बार बार उसे चेक करना पड़ता है, और ये आपका जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उसको क्या करो, डेली बेसिस पे चेक करो, ताकि आपके माउस में कोई भी किसी भी तरह का डस्ट या कोई भी पार्टिकल ना घुस जाए, ताकि आपका माउस जो है वो अच्छे तरीके से काम करे। थर्ड, क्लीनिंग द मॉनिटर. Cleaning the monitor is the third step to keep your computer physically fit. Dirt, fingerprints, and dust can make your computer screen difficult to read. However, it is easy to clean your screen when needed. But before cleaning, you should shut down the computer, unplug the monitor from the power. If you are using a laptop, shut it down. Use a soft and clean cloth to wipe the screen clean. Do not spray any liquid directly on the screen. The liquid can leak into the monitor and damage the internal कंपोनेंट। तो बच्चों अब हम जानेंगे कैसे हम अपने मॉनिटर को क्लीन रख सकते हैं, ठीक है। अब मॉनिटर को क्लीन रखना भी आपकी एक ड्यूटी बन जाती है, ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो फिजिकली फिट रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अपने हाथों से अपने कंप्यूटर को टच करते हैं तो वहाँ पे डर्ट आ जाता है, फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, डस्ट आ जाते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन को डिफ़िकल्ट बना देते हैं रीड करने में, ठीक है। हालांकि हम इसे क्लीन कर सकते हैं जब भी हम इसे चाहें, लेकिन क्लीन करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो, ठीक है। हमारा मॉनिटर जो है वो पावर से अनप्लग हो, और अगर आप लैपटॉप पे वर्क करो तो उसको भी आप सबसे पहले क्या कर लो, शट डाउन कर लो। उसके बाद आपको यूज़ करना है एक सॉफ्ट एंड क्लीन क्लॉथ टू वाइप द स्क्रीन क्लीन, ठीक है। आपको कोई भी लिक्विड स्प्रे नहीं करना डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, क्योंकि लिक्विड क्या हो सकता है, वो लीक कर सकता है और आपके मॉनिटर के अंदर वो जा सकता है और आपके इंटरनल पार्ट्स को वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। नोट, डू नॉट यूज ग्लास क्लीनर्स टू क्लीन अ मॉनिटर. Many screens have anti-glare coatings that can get damaged by glass cleaners. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि आप जैसे कोई भी ग्लास क्लीनर होता है जिससे आप अपने मिरर वगैरह साफ करते हो, वो आपको यूज़ नहीं करना अपने मॉनिटर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्क्रीन जो होती हैं वो आपकी एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आती है। तो अगर आप उसको ग्लास क्लीनर से यूज़ करोगे, उसे क्लीन करोगे, तो वो उसको क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल एक्सेस. You have studied about how to keep your computer physically fit. It is equally important to prevent damage or misuse of data, software or hardware of a computer and restrict unauthorized access to it. One of the ways to prevent the misuse of data or software is authentication. Authentication is the process of verifying a user's identity before granting him or her access to a computer system. In private and public computer networks, including the internet, authentication is commonly done through use of login passwords. Knowledge of the password is assumed to guarantee that the user is authentic. Some of the authentic procedures are password protection. Protect your computer using password is an important step to make the data of computer safe from unauthorized use. A password is a word or collection of characters used for user authentication to prove the identity or get approval to gain access to the computer.
The password should be kept secret from those computers which are not allowed to access your computer. Biometric authentication. Biometric authentication is a process in which biological characteristics such as fingerprint, face, and retina are used to check the identity of an individual. In this process, a biometric machine is used to capture the biological details of a person and compare these details with the existing details which are stored in computer. It is an automated method of recognizing a person's identity by using his/her biological characteristics such as. तो बच्चों यहाँ पे हम जानेंगे कैसे हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इलीगल एक्सेस। अब आपने पढ़ा होगा कि आपके कंप्यूटर को फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डेटा का मिसयूज़ होने से उसे बचाओ, अपने सॉफ्टवेयर और अपने हार्डवेयर को भी क्या कर सको, डैमेज होने से बचाओ। अब आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो कैसे? ऑथेंटिकेशन के थ्रू। ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे आप डिफरेंट यूज़र्स को क्या करते हो, वेरीफाई करते हो, ताकि उनको एक परमिशन ग्रांट की जा सके आपके कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट और पब्लिक कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होते हैं उसमें आपके बहुत सारे लोग उसमें क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन जो होता है वो कॉमनली डन होता है थ्रू द यूज़ ऑफ लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी यूज़र आईडी बना सकते हो और उसमें अपना पासवर्ड आप डाल सकते हो। ठीक है, अब पासवर्ड जब आप डाल देते हो तो वो एक तरह का गारंटी आपको दिखाता है कि आपका जो यूज़र है वो क्या है, ऑथेंटिक माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कुछ प्रोसीजर बताए गए हैं कि कैसे आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो यूज़ होता है। सबसे पहले आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड जो होता है वो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए डाला जाता है, ताकि आप या आपके जो भी आपका रिलायबल पर्सन हो वो उस पासवर्ड को यूज़ करके आपके कंप्यूटर को क्या कर सके, यूज़ कर सके, उस पर काम कर सके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपका अनऑथराइज्ड यूज़ से आप अपने कंप्यूटर को बचा सकते हो। कोई भी ऐसा पर्सन जो आप नहीं चाहते आपके कंप्यूटर को यूज़ करे आपकी एब्सेंस में, तो आप सिंपली उसमें पासवर्ड डाल सकते हो। अगर उसको पासवर्ड पता होगा तो वो डाल सकेगा, उसे अप्लाई कर सकेगा, और अगर आपको उसको पासवर्ड नहीं पता होगा तो आपके कंप्यूटर को वो नहीं यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो आपको जो पासवर्ड होना चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें आपके कैरेक्टर्स आने चाहिए, नंबर्स आने चाहिए और आपके अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी उसमें आने चाहिए, ताकि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और कोई भी उसे कॉपी ना कर सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो होता है वो एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, आपका फेस हो गया, आपके रेटिना हो गया, जो आपके आइज़ का आइरिस होता है, रेटिना होता है, उसको यूज़ किया जाता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के रूप में। ठीक है, अब ये इसमें आपके बायोलॉजिकल डिटेल्स को कैप्चर किया जाता है किसी भी पर्सन के, और फिर आप उसके थ्रू अपनी जो कंप्यूटर है उसे क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, नाउ नोट, बायोमेट्रिक वर्ड्स यूज ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स। Chinese use fingerprints in the 14th century for identification. In the 17th century, fingerprints were used to seal official डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि बायोमेट्रिक जो था वो यूज़ किया जाता था प्री हिस्टोरिक टाइम के दौरान। चाइनीज़ जो थे वो अपने फिंगरप्रिंट्स यूज़ किया करते थे कब, 14th सेंचुरी में, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। और 17वीं शताब्दी में ये कहा जाता था कि फिंगरप्रिंट्स को यूज़ किया जाता था टू सील ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। First, face recognition. Face recognition is the process to identify an individual by using his/her facial features. Biometric machine captures the facial image or video of a person's face. This image is transformed into a unique face print. The image is transformed using a technique called elastic graph matching. Images are sent to a back-end database for comparison and possible match. Algebraic algorithms are used to make a perfect match. Currently, face recognition technique is most widely used in smartphones. Second, iris and retinal recognition. Biometrics, which analyze the complex and unique characteristics of the eyes, can be divided into two different types. Iris biometric. Iris is the colored band of tissue that surrounds the pupil of the eye. An iris recognition system uses a video camera to capture the sample while the software compares the resulting data against stored templates. Retina biometric. Retina is the layer of blood vessels at the back of the eye. A retinal recognition system shoots
an infrared light beam into eye that has been placed close to the signal receiver. Then the genetic factors are interacted and analyzed by the analyzer to grant access. Third, voice recognition. The term voice recognition refers to finding the identity of a person who is speaking rather than who she is saying. Recognizing the speaker can simplify the task of translating speech into system that has been trained on a specific person's voice, or it can be used to authenticate or verify the identity of a speaker as part of security process. Encryption. Encryption is the process of conversion of data and information into a form called ciphertext that cannot be easily understood by unauthorized people. Decryption is the process of converting encrypted data back into its original form so that it can be understood. The use of encryption decryption is as old as the art of communication. In older days, at the time of war, a cipher, often called as code, was employed to keep the enemy away from obtaining the contents of transmissions. Simple cipher includes the substitution of letters for numbers and rotation of letters in the alphabet and the scrambling of voice signals by inverting the sideband frequencies. Some complex ciphers work according to sophisticated computer algorithms that rearrange the data bits in digital signals. For example, take a look at the following code: JOGPSNBUJPOQSPUFDUJPO. Do you understand the code, or does it make any sense? No. This is because it is written in encrypted form. However, if you know the decipher, you can decipher it. Try replacing every letter in the message with the letter preceding it in the alphabet. You will find that the code is information protection. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम फेस रिकग्निशन के थ्रू ऑथेंटिकेशन करते हैं. फेस रिकग्निशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें आपके इंडिविजुअल की आइडेंटिफाई को क्या किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है बाय हिज एंड हर फेशियल फीचर्स. बायोमेट्रिक मशीन जो है होती है वो कैप्चर करती है आपके फेशियल इमेज को, या फिर वो उस पर्सन के फेस का वीडियो कैप्चर करती है. ठीक है, उसके बाद वो जो इमेज है वो ट्रांसफॉर्म की जाती है इनटू यूनिक फेस प्रिंट. उसके बाद आपके फेस के जो फेस प्रिंट होते हैं उसको मैच किया जाता है. ठीक है, और फिर उसमें आपकी टेक्निक यूज़ होती है जिसे इलास्टिक ग्राफ मैचिंग कहते हैं. इमेज जो होता है वो बैक एंड डाटाबेस पे भेजा जाता है कंपैरिजन के लिए. ठीक है, और पॉसिबल मैच के लिए. ठीक है, इसमें आपके अलजेब्रिक एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है टू मेक अ परफेक्ट मैच. करंटली आपका जो फेस रिकग्निशन टेक्निक है वो आपके स्मार्टफोन्स में यूज़ की जाती है. आप देखते होंगे जब आप अपने स्मार्टफोन को अपने फेस के पास लेके आते हो तो वो क्या कर लेता है, अनलॉक हो जाता है और आप उसको एक्सेस कर पाते हो. तो इसके बाद हम बात करते हैं आइरिस एंड रेटिनल रिकग्निशन के बारे में. ठीक है, बायोमेट्रिक जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमारी आइज़. अब इसको वो दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सबसे पहला आ जाता है आपका आइरिस बायोमेट्रिक. ठीक है, आइरिस जो होता है वो आपका कलर बैंड होता है टिश्यूज़ का जो कि आपके आइज़ के पीपल के सराउंडिंग होता है. ठीक है, ये जो आइरिस होता है ये इसका रिकग्निशन सिस्टम यूज़ करता है एक वीडियो कैमरा के थ्रू जो कि कैप्चर करता है आपके सैंपल ऑफ द आइज़ को. ठीक है, फिर वो आपके सॉफ्टवेयर से क्या करता है, सॉफ्टवेयर में उन दोनों को मैच किया जाता है. ठीक है, फिर उसके थ्रू आपकी पहचान होती है. सेकेंड आता है रेटिना बायोमेट्रिक. रेटिना जो होता है एक लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स होता है एट द बैक ऑफ द आइज़, मतलब ये आइज़ के हमारे पीछे की तरफ होता है. ठीक है, रेटिनल रिकग्निशन जो होता है सिस्टम वो शूट करता है एंड इंफ्रारेड लाइट बीम. ठीक है, वो आपकी आंखों पे एक रे को भेजता है. ठीक है, और फिर उसको सिग्नल्स को रिसीव करता है और फिर उसके बाद आपकी आइज़ के रेटिना को मैच किया जाता है, मतलब प्रीवियस डेटाबेस के साथ. थर्ड आता है वॉइस रिकग्निशन. अब ये जो टर्म है वॉइस रिकग्निशन ये रेफर करती है कि आपके पर्सन क्या कह रहा है. ठीक है, रेदर देन क्या वो बोल रहा है, मतलब उसकी जो वॉइस है ये उसको पहचानता है, ना कि वो क्या कह रहा है उसे. अब ये आपके स्पीकर की वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है, और इसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है स्पीच को इनटू सिस्टम दैट हैज़ बीन ट्रेंड
ऑन अ स्पेसिफिक पर्सनस वॉइस। ठीक है, उसको पहले से ट्रेन किया जाता है कि आपको इस पर्सन की वॉइस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और बाद में इसको ही आपको पहचानना है जब जब आपसे बोला जाएगा उसी वॉइस में। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं इंस्क्रिप्शन की। इंक्रिप्शन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, इसे इजीली अनऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू समझा नहीं जा सकता। डिक्रिप्शन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका एन्क्रिप्टेड डेटा को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, सो दैट आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसका यूज़ जो था वो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था जब वॉर हुआ करती थी, तो वॉर में इसे यूज़ किया जाता था और उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे वो अपने कंटेंट को विरोधी टीम से या विरोधी जो उनके एनिमी होते थे उनसे उन्हें छुपाने के लिए इसे यूज़ किया करते थे। इसमें सिंपल साइफर जो होता है इंक्लूड किया जाता है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर्स फॉर नंबर्स। ठीक है, इसमें कुछ कोडिंग आपको दी जाती है, आपको कुछ लेटर्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नंबर्स में। ठीक है, और उनको आपको क्या करना होता है, रोटेट करना होता है, मतलब आपको दूसरे को बताना होता है, आपको थर्ड पार्टी को नहीं बताना होता, आप जिसको बताना चाहते हो आपको उसी को ही बताना होता है कि आपको मैं कुछ कोड दे रहा हूँ, आपको इस कोड को इस तरह से ही ओपन करना है। ठीक है, अब उसमें आप क्या कर सकते हो, उनमें आप स्क्रैम्बल कर सकते हो या फिर आप अल्फ़ाबेट को नंबर का नाम दे सकते हो, इस तरह से आप उनको कोडिंग कर सकते हो ताकि जो आपका सामने वाला है जो उस कोड को पढ़ना चाहता है वो उसको उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, ईजिली पढ़ सकता है। अब जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है JOGPSNBUJPO अब इसको आप अंडरस्टैंड करना चाहोगे तो आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, लेकिन अगर आपको समझाया जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें आपके एक लेटर आगे का वर्ड आपको लेना है तो आप इजीली उसको पढ़ पाओगे इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के रूप में। नाउ हाउ टू बैकअप योर इम्पोर्टेंट फाइल्स। Now you will learn how to back up your computer files. It is another important step for computer safety. Have you lost any important documents, photos or other files? Imagine what would happen if your computer suddenly stopped working. It may be possible to repair your computer, but your files may be lost forever. Luckily, you can prevent this by creating backup copies of all of your files or just the important ones on an external hard disk drive or an online backup service. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया कि कैसे आप अपने फाइल्स का बैकअप रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं और जब वायरस आ जाते हैं तो आपका कंप्यूटर जो होता है वो काम करना बंद कर देता है या वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है कंप्यूटर यूज़ करते समय। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंप्यूटर को फॉर्मेट मारना पड़ता है। ठीक है, जब आप उसको फॉर्मेट करते हो तो क्या होता है, आपका जो डाटा होता है वो सारा का सारा इरेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वायरस को अगर हटाना है तो आपको सारा डाटा भी इरेज करना पड़ेगा, तो इससे आपकी जो फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, इरेज हो जाती हैं। तो इसका एक बेस्ट तरीका बताया गया है कि आप उनका बैकअप रख सकते हो किसमें, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव में। नाउ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, to keep your files safe you can purchase an external hard disk drive and copy the content of your computer on it. The initial backup could take several hours. Follow-up backup should be conducted on a regular basis, but it may not take long because the drive will only need to copy your most recent files. अब इसमें बताया गया है कि आप दो तरीके से अपनी फाइल्स का बैकअप ले सकते हो। ठीक है, पहला है इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स को सेव करके रख सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नली भी, मतलब आपके कंप्यूटर में तो आपका डाटा रहेगा ही और साथ ही साथ ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी आप इसको सेव करके रख सकते हो। अब इसमें बताया कि इनिशियली ये बहुत टाइम लेता है क्योंकि आपका डाटा काफ़ी लार्ज क्वान्टिटी में होता है, उसकी जो MB होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो वो शुरू में टाइम लेगा, लेकिन अगर आप उसको डेली बेसिस में बैकअप करते रहोगे तो वो बाद में टाइम नहीं लेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपकी रिसेंट फोटो या रिसेंट डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, कॉपी करेगा। ठीक है, ऑनलाइन बैकअप सर्विसेज, यू कैन ऑल्सो बैकअप योर फाइल्स टू वन ऑफ द ऑनलाइन बैकअप सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव, बैकब्लेज, कार्बोनाइट, ड्रॉपबॉक्स एक्सेट्रा, फ्रॉम वेयर योर फाइल विल ऑलवेज बी accessible to you. The amount of storage space provided by these websites varies and you may have to pay a monthly or yearly fee for adequate storage. One drawback of online backup services is that the initial backup can be slow and may even take days to upload if you have a large amount of data.
However, subsequent backups may not take as long. ठीक है, अब इसका दूसरा हमें बताया गया तरीका कि आप अपनी फाइल्स को कैसे बैकअप कर सकते हो, ऑनलाइन बैकअप सर्विस के थ्रू भी कर सकते हो। इसमें आपकी जो फाइल्स होती हैं वो आपकी सेव होती हैं ऑनलाइन बैकअप सर्विस में, जैसे कि आपका क्या कहलाता है, गूगल ड्राइव कहलाता है। ठीक है, मैकब्लेज कहलाता है, कार्बोनाइट ड्रॉप बॉक्स कहलाता है। इसमें भी आप ऑनलाइन अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। लेकिन इसमें बताया गया है कि ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी स्लो होता है, इसमें आपके बहुत दिन भी लग जाते हैं आपकी फ़ाइल का बैकअप करने में, क्योंकि आपको पता है आपकी डेटा की जो MB होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा दिन लगाती है सेव होने में, वहाँ पे कॉपी होने में। लेकिन ये अच्छा तरीका माना गया है कि आप अपनी फ़ाइल को एक्सटर्नली भी सेव करके रख सकते हो, मतलब कंप्यूटर के अलावा भी आप ऑनलाइन भी इसे सेव करके रख सकते हो, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उनको क्या कर लो, यूज़ कर लो। नाउ मालवेयर. Malware is a malicious software. It refers to software programs designed to damage or carry out other unwanted actions on a computer system. In Spanish, mal is a prefix that means bad, making the term badware, which is a good way to remember it. The different types of malware are virus, worm, Trojan horse, spyware, zombies, ransomware, rootkit and backdoor. बच्चों malware जो होता है वो एक तरह का आपका malicious सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए या फिर कैरी आउट करने के लिए अदर अनवांटेड एक्शंस। स्पेनिश में माल वर्ड का जो मीनिंग है उसका प्रीफिक्स एक क्या है, एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है बैड। ठीक है, तो आप इसको बैडवेयर भी कह सकते हैं, और इसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं, काफ़ी इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, इस तरह के काफ़ी इसके फंक्शंस हैं, टाइप्स हैं, जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहला है वायरस। कंप्यूटर वायरसेस आर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट्स बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन. The prime motive of a virus is not to cause damage but to clone itself onto another host so that it can spread further. If a virus causes damage, it is more likely to be detected, and for this reason, virus authors employ stealth techniques to keep it unnoticed. A good virus has a very small footprint and can remain अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बच्चों वायरस जो होते हैं, कंप्यूटर वायरस, वो आपके सिमिलर होते हैं उनके बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट से, क्योंकि इनकी एक कैपेबिलिटी होती है, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं खुद से ही। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट कर लेते हैं। इनका प्राइम मोटिव होता है कि आपके कंप्यूटर को ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को क्लोन भी कर लेते हैं ताकि ये एक कंप्यूटर में तो रहे और ये साथ के साथ क्या हो, दूसरे कंप्यूटर में भी फैल जाए, दूसरे कंप्यूटर में भी ये पहुंच जाए और वहाँ पे भी जो सिस्टम होता है या जो उनके डाटाज होते हैं उनको ये क्या करे, करप्ट करे। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया अगर वायरस काउज नहीं करता डैमेज, इट मोर लाइकली टू बी डिटेक्टेड। अगर वो काउज करता है तो क्या होता है, वो आपका डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही होता है कि आपका कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा या कोई फाइल ठीक से नहीं खुल रही, तो आपको पता चल जाता है कि आपके कंप्यूटर में क्या है, वायरस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ गुड वायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर में लंबे समय तक रहता है और वो कभी भी डिटेक्ट नहीं होता। Worms are very similar to viruses in many ways. The biggest difference between a worm and a virus is that worms are aware if the system is connected to a network. A virus finds it very easy to replicate itself amongst files on the same computer. However, it is a hard time jumping from one computer to another. A worm overcomes this computer to computer hurdle by seeking new hosts on the नेटवर्क एंड अटेम्प्टिंग टू इन्फेक्ट देम। अब बच्चों यहाँ पे वायरस के बाद बताया गया कि वॉर्म क्या होता है। वॉर्म भी सिमिलर ही होते हैं आपके वायरस से इन मैनी वे, लेकिन इनके बीच का बिगेस्ट डिफरेंस होता है कि वॉर्म जो होता है वो क्या करता है, वो आपके नेटवर्क के थ्रू आता है। ठीक है, लेकिन वायरस तो आपको पता है कि आपने अगर कहीं से कोई कॉपी लिया है, कोई डाटा कॉपी किया है, तो वो उसके थ्रू भी वो आ जाता है। तो वायरस क्या करता है, अपने आप को कॉपी कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है, अपना क्लोन बना लेता है। लेकिन वॉर्म जो होता है वो नेटवर्क के थ्रू अपना एक होस्ट दूसरा होस्ट वो ढूंढता रहता है, फिर वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे वो चला जाता है नेटवर्क के थ्रू। ट्रोजन हॉर्सेस। द पर्पस ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स इज द कंसील इटसेल्फ inside the software that seems legitimate. When the software is installed on the system, the Trojan gets activated and infects the host system. तो बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ट्रोजन हॉर्सेस की। ट्रोजन हॉर्स जो होता है उसका मेन पर्पस होता है कि वो क्या करता है, कंसील करता है अपने आप को इनसाइड द सॉफ्टवेयर, जो कि
दिखता है आपको लेजिस्टिमेट की तरह, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है किसी सिस्टम में तो ट्रोजन जो होता है वो क्या कर लेता है, अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है और वो होस्ट सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। नोट, द टर्म ट्रोजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रोजन हॉर्स स्टोरी इन ग्रीक माइथोलॉजी, which explains how the Greeks were able to enter the fortified city of Troy by hiding their soldiers in a big wooden horse given to the Trojans as a gift. The Trojans were very fond of horses and trust the gift blindly. In the night, the soldiers emerged and attacked the city from inside. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है ये जो टर्म है ट्रोजन, ये ग्रीक मैथोलॉजी के मतलब किसी स्टोरी से ये ली गई है, ठीक है, जिसका नाम था ट्रोजन हॉर्स। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जो ग्रीक्स थे वो दूसरे के जो उनका किला होता है उसके अंदर वो पहुंच गए थे। उन्होंने क्या किया था, उनको एक लकड़ी का बड़ा सा हॉर्स गिफ्ट किया था। अब वो जो वहाँ के लोग थे वो उसको बड़ा पसंद करते थे, उनको जो हॉर्सेस थे उनका बड़ा शौक था, तो उन्होंने उसे खुशी खुशी ले लिया। लेकिन जब उनको नहीं पता था कि ये जो बड़ा सा लकड़ी का हॉर्स है उसके अंदर क्या छुपे हुए हैं, उसके अंदर उनके एनिमीज छुपे हुए हैं। तो जब रात हुई थी तो सोल्जर्स उस घोड़े से, जो लकड़ी का घोड़ा बना हुआ था ना, उसके अंदर से वो बाहर निकल आए थे और उन्होंने अपने दुश्मन पे क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। स्पाईवेयर, the primary function of spyware is to snoop on a user's activity and send back the information to gathers to a hacker. Spyware does not have any infection mechanisms. It is usually dropped by Trojans and also by viruses and worms. Once dropped, it installs itself on the victim's computer and sits there silently to avoid detection. अब बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर का प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो अपने यूज़र की एक्टिविटी को क्या करता है, स्नूप करता है, उससे पहले देखता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को भेजता है वापस कहाँ, हैकर के पास। जो स्पाईवेयर होते हैं वो आपकी इन्फेक्शन मैकेनिज्म उसमें नहीं होता, तो वो आपके कंप्यूटर के सिस्टम को हार्म नहीं पहुँचाते, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको गैदर करके चुपके चुपके हैकर्स को भेजते हैं, ठीक है। ये यूजुअली क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं बाय ट्रोजन, मतलब जैसे ट्रोजन होता है उसी तरह से ये आते हैं, उन्हीं के थ्रू ये ड्रॉप किए जाते हैं, ठीक है। अब चाहे वायरस है या चाहे आपका वॉर्म है, मतलब उनके थ्रू चाहे नेटवर्क से आते हैं या किसी के कॉपी डेटा के थ्रू आते हैं, पर ये चुपके से आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं तो ये इंस्टॉल करते हैं इटसेल्फ ऑन द विक्टिम्स कंप्यूटर, और ये वहीं पर चुपके से बैठे रहते हैं टू अवॉइड डिटेक्शन, मतलब इन्हें आप पहचान नहीं सकते। ज़ोंबी, a zombie works in a similar way as spyware do, although the infection mechanism remains the same. A zombie does not usually collect information from the computer. Instead, it just sits there waiting for commands from the hackers. At times, hackers can infect tens of thousands of computers, turning them into zombie machine. तो बच्चों यहाँ पे zombie भी बताया गया है, zombie भी आपका spyware की तरह ही काम करता है, ठीक है। ऑल्दो इसका जो इन्फेक्शन मैकेनिज्म है वो सेम ही रहता है। zombies जो होते हैं वो आपके डेटा को या आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते फ्रॉम द कंप्यूटर, जबकि ये वहाँ पे बैठे रहते हैं और वेट करते हैं कमांड फ्रॉम द हैकर्स, मतलब कमांड, किसकी कमांड का वेट करते हैं, ये हैकर की कमांड का वेट करते हैं। अब ये बताया गया है कि हैकर जो होते हैं वो एक बारी में ही काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। उनके कंप्यूटर को क्या किस में टर्न कर देते हैं, ज़ोंबी मशीन में टर्न कर देते हैं। रैंसमवेयर, ransom is the money demanded to release the hostage kidnapped for the purpose. Similarly, ransomware is malicious software used to kidnap the data of the host system by encrypting it. The victim of the host system has to pay a huge amount of money to the attacker to get back access to data. रैंसमवेयर एक और तरह का आपका वायरस है, ठीक है, जो क्या करता है, जैसे कि रैंसम होती है, आप किसी को किडनैप कर लेते हो, फिर उसके बदले में क्या मांगते हो, जो किडनैपर्स होते हैं वो रैंसम मांगते हैं। इसी तरह से रैंसमवेयर भी जो है वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डेटा को किडनैप कर लेता है ऑफ द होस्ट सिस्टम, ठीक है, बाय इनक्रिप्टिंग इट, उसे इनक्रिप्ट कर लेता है, फिर होस्ट से क्या मांगता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मांगता है, और आपको देना भी पड़ता है क्योंकि आपको अपना डेटा क्या चाहिए, वापस चाहिए होता है। रूटकिट्स, Rootkit is a malware that gains administrator's access to the host system. Once the attacker gains access to the system, the rootkit gets hidden but retained special access to the system. The detection of a rootkit is difficult as having special access to the system. It bypasses the tracking software. अब रूटकिट भी क्या है, एक आपका मालवेयर है, ठीक है, जो कि एडमिनिस्टर का एक्सेस गेन कर लेता है टू द
होस्ट सिस्टम। जब आपका अटैकर गेन करता है एक्सेस टू द सिस्टम तो वो क्या करता है, रूटकिट को हाइड कर लेता है, ठीक है, लेकिन ये आपके कंप्यूटर में रहता है टू रिटेन स्पेशल एक्सेस, ठीक है। और जो उसका डिटेक्शन है ऑफ रूटकिट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें स्पेशल एक्सेस होता है टू द सिस्टम और ये बाईपास करता है बाय ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। Backdoor. Backdoor is a type of malicious software which enters into the computer through bundled with other software or files. It is used to gain remote access to the होस्ट कंप्यूटर। बैकडोर भी क्या है, एक तरह का malicious सॉफ्टवेयर है जो कि आपके जैसे आप काफ़ी सारी फाइल्स को या काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो ये उनके साथ साथ चुपके चुपके आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है और ये एक तरह का आपका रिमोट एक्सेस गेन कर लेता है टू the host computer. Antivirus. An antivirus program is a software which can detect the presence of a virus on a computer and remove the virus. Eradicating a virus is the term used for cleaning a computer. There are several methods of eradication. Removing the code in the infected file which corresponds to a virus, removing the infected file, quarantining the infected file which involves moving it to a location where it cannot be run, informing the user about the presence of the malware and the actions that has been taken, separating all the infected files and applications so that the infection cannot spread further. Some well-known antivirus programs are Norton, AVG, McAfee, Symantec, SmartDog, कैस्पर, स्काई एक्सेट्रा। तो बच्चों हम जान लेते हैं कि कैसे हम वायरसेस को अपने कंप्यूटर से हटा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा। अब एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको ये कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर कि वो क्या कर सकता है, आपके कंप्यूटर में जितने भी वायरस प्रेजेंस होता है उसको वो डिटेक्ट कर लेता है और साथ ही साथ वो डिटेक्ट करके उसे रिमूव भी करता है। ठीक है, इरेडिकेटिंग एक टर्म होती है जो कि यूज़ की जाती है आपके कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए। अब यहाँ पे मेथड्स बताए गए हैं कि कैसे इरेडिकेशन होता है। सबसे पहले तो कोड्स को रिमूव किया जाता है जो कि आपके इन्फेक्टेड फाइल के अंदर होता है, जो कि करस्पॉन्ड करता है टू अ वायरस। ठीक है, फिर आपकी जो इन्फेक्टेड फाइल होती है उसे रिमूव किया जाता है। फिर कोई इन्फेक्टेड फाइल अगर होती है, अगर आप नहीं चाहते उसे डिलीट करना, तो वो क्या करते हैं, उसे क्वारंटाइन करते हैं। ठीक है, मतलब उसका एक अलग फोल्डर बना के उसे अलग से रखते हैं ताकि आप उसे कुछ दिनों तक यूज़ ना करो और उसका वायरस जो है वो दूसरे फाइल्स में ना फैल सके। इन्फॉर्म करता है यूज़र को अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द मालवेयर। ठीक है, और एक्शन भी लिया जाता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, सिर्फ आपको ये इन्फॉर्म ही नहीं कराता कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, उसे डिलीट भी करवाता है, उसे रिमूव भी कराता है। ठीक है, ये सेपरेट करता है ऑल द इन्फेक्टेड फाइल्स एंड एप्लीकेशन, ताकि जो इन्फेक्शन है वो दूसरे फाइल्स में या दूसरी एप्लीकेशन में ना फैले। अब यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने कंप्यूटर में ये सब एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। फायरवॉल। The term firewall originally refers to a wall intended to confine a fire or potential fire within a building. In computer, a firewall is a software or hardware-based network security system that controls the incoming and outgoing network traffic based on applied rule set. A firewall acts like a gatekeeper and prevents unauthorized access to a computer network. It inspects every data packet that arrives at a network and decides on the basis of a set of predefined rules whether to pass or not. Firewall established a barrier between a trusted, secure internal network and other network. For example, the internet that is not assumed to be secure and trusted. अब बच्चों फायरवॉल जो क्या है वो ओरिजिनली एक टर्म से ओरिजिनेट किया गया है, निकाला गया है, जो कि रेफर करता है एक वॉल जो कि इंटेंटेड है टू कन्फाइन अ वॉर, और उसकी पोटेंशियल होती है कि उसके अंदर क्या होती है, फायर होती है इन अ बिल्डिंग। इसी तरह से कंप्यूटर में एक फायर वॉल जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है या एक हार्डवेयर होता है जो कि क्या करता है, आपके नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम वो प्रोवाइड करता है ताकि आप कंट्रोल कर सको आपके कंप्यूटर में कोई भी, जैसे इनकमिंग आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो या कोई फाइल आप सेंड करते हो तो उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको वो जज करता है, देखता है कि भाई जो फाइल आपके कंप्यूटर में आ रही है कहीं वो करप्टेड फाइल तो नहीं है या उसमें कोई वायरस तो नहीं है। ठीक है, ये इंस्पेक्ट करता है हर एक डाटा पैकेट को जो कि अराइव होता है एट द नेटवर्क। सिर्फ आपके
पेन ड्राइव या कोई एक्सटर्नल जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हो, ठीक है, उसके थ्रू ही नहीं बल्कि ये नेटवर्क के थ्रू भी अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो ये उसको भी क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है कि आपकी कोई भी फाइल करप्टेड या फिर कोई भी वायरस से भरी हुई तो नहीं है, ठीक है। फायरवॉल जो होता है इस्टेब्लिश करता है एक बैरियर, ठीक है, एक बैरियर ये करता है और एक तरह से ये गेट कीपर का काम करता है। जैसे आपकी बिल्डिंग में वॉचमैन देखता है कि भाई कोई सस्पेक्टेड पर्सन तो नहीं आ रहा है या कोई पर्सन जो आ रहा है वो नोन है आपके, इसी तरह से ये फाइल्स को भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि ये फाइल जो है ऑथराइज जगह से आ रही है ये या अनऑथराइज जगह से आ रही है। पॉइंट्स टू रिमेंबर: Computer safety refers to the protection of computer-based resources against unauthorized use or physical damage. Authentication is the process of verifying a user's identity before granting him or her access to a computer system. The different types of malware are virus, worm, Trojan horse, spyware, zombies, ransomware, rootkit, and backdoor. A set of programs that identify and remove malware are known as antivirus software. A firewall is a type of security program or hardware that prevents unauthorized access to a computer network. Password protection, face recognition, voice recognition are some important techniques for computer safety. Malware is designed to damage or do unwanted actions on a computer system. So students, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.